یہ پروگرام جیسے کہ عاطف بھائی نے بتایا ہے کہ 7 سالہ تقریبات کے موقع پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور عصمت چغتائی چونکہ وہ الجیرین بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ مشہور اور معروف افسانہ نگار بھی ہیں، وہ فلم میکر کی حیثیت سے بھی جانی جاتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے مضامین بھی ہیں۔ تو ہم یہ اس طرح سے دیکھتے ہیں، ڈرامہ نگار ہیں وہ، تو کئی ہمہ جہت شخصیت کے وہ مالک ہیں، اور اس طرح کی ہستیاں جن پر ہم ناز کر سکتے ہیں، اردو والے بھی اور علی گرین ہونے کے ناطے علی گڑھ والے بھی، تو وہ بالکل جو ہے عصمت آپا پر وہی بات بالکل صادق آتی ہے۔ اور میں ان کا ایک مختصر سا تعارف یہاں پیش کرتا ہوں کہ 21 اگست 1915 میں عصمت چغتائی کی بدایوں میں پیدائش ہوئی۔ متوسط طبقے اور نچلے متوسط طبقے کے مسائل کو انہوں نے جو ہے اپنی کہانیوں میں اور اپنے ناول میں موضوع بنایا۔ وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک منفرد آواز، اردو فکشن کی ایک منفرد آواز ان کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ وہ فیمنسٹ تخلیق کار بھی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس پورے منظر نامے میں وہ واحد ایسی افسانہ نگار ہیں رشید جہاں کے بعد کہ جنہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا، عورتوں کے مسائل جو تھے ان کو کھل کر پیش کیا، جس کو ہم اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ بالکل باغی لہجہ تھا، اور اس پر سب کو اعتراض بھی ہوا اور وہ ایک متنازع سی شخصیت بھی بن گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اگر ادبی حیثیت سے جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں تو ہم ان کو کہیں گے کہ وہ ادبی حقیقت نگار بھی ہیں۔ ریئلزم کا ایک پورا تصور رہا ہے ویسٹ میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو زیادہ ابھار کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب اور وہ مسئلہ وہ ایسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے جو بہت گھناؤنی ہوتی ہے، جن کو ہم بالکل برداشت نہیں کر پاتے، لیکن وہ ایک سچی حقیقت ہوتی ہے۔ تو حقیقت نگاری کا مطلب اردو میں عام طور پر جو لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل جیسا دیکھا اور ویسا انہوں نے بیان کر دیا، لیکن اگر ہم مطالعہ کریں قاعدے سے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اردو ادب میں منٹو اور عصمت چغتائی کے علاوہ کوئی ایسا افسانہ نگار ہمیں نہیں دور دور تک نظر آتا ہے جس نے باقاعدہ اس ٹرینڈ کو فالو کیا ہو جو واقعی حقیقت نگاری کی کا تھا، یعنی کہ جو ویسٹ میں موجود تھی وہ حقیقت نگاری، یعنی گھناؤنی حقیقت کو مزید گھناؤنا بنا کر ابھار کر پیش کرنے کا جو ایک تاثر تھا وہ دونوں کے یہاں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ادبی حقیقت نگار بھی ہیں۔ انہوں نے جس طرح کے ناول لکھے آپ جانتے ہیں کہ یہ قطرے خون، ٹیڑھی لکیر، دل کی دنیا، ضدی، سودائی، جنگلی کبوتر، اس طرح کے جو ناول لکھے، اسی طرح سے انہوں نے جو افسانے پیش کیے وہ چوتھی کا جوڑا، لحاف، پھسلن، پنکچر، اس قسم کے نفسیاتی اور جنسی افسانے، ننھی کی نانی، بچھو پھوپھی، جڑیں، بدن کی خوشبو، دو ہاتھ، گھونگھٹ، جنازے، چھوئی موئی، امر بیل، کنواری، بیڑیاں اور بھابھی جیسے افسانے انہوں نے جو ہے وہ تخلیق کیے۔ تو یہ اس طریقے سے جس بالکل ایک منٹو کے پیرالل اگر ہم دیکھیں کہ موضوعات کے اعتبار سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ تمام موضوعات جو ہے جو جنسی بھی رہے ہیں اور جو جنسی نہیں بھی رہے ہیں، اور خاص طور سے جو شخصیت کو تبدیل کر دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں نچلے متوسط طبقے کے وہ بھی انہوں نے قاعدے سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ منظرگاری میں تو ان کو کمال حاصل تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ان کے افسانے نگاری کا ایک بنیادی جز ہیں۔ فن پر ہم بحث الگ طریقے سے کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ان کو ہم جو ہے کسی سے کمتر یا کسی سے بہتر ہم مانیں، لیکن اوور آل جو ہم مجموعی طور پر جب ہم گفتگو کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت چغتائی ایک ایسی افسانہ نگار ہیں کہ جو واقعی جو ہے قابل قدر ہیں، اور ان کو جو ہے ان کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ 1976 میں ان کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 24 اکتوبر 1991 میں ان کا انتقال ہوا 76 برس کی عمر میں بمبئی میں، اور شاہد لطیف صاحب سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی جو دو اولاد ہیں، ان کی سیما ساہنی اور سبرینا لطیف ان کا نام ہے، اور اس کے بعد وہ نسل ابھی بھی چل رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہم نے ان سے درخواست بھی کی تھی اکشے ساہنی صاحب سے جو ان کے نواسے ہیں کہ وہ اگر ہوتے تو وہ ضرور اس پروگرام میں شریک ہوتے، لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے شاید جو ہے وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ، چونکہ سیما میم نے مجھ سے کہا تھا کہ
میں پروگرام میں شاید تکلیف ان کو اور اس وقت جو ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے مجھے پہلے لائے ہے، تو میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ پروفیسر سیما صغیر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پروفیسر سیما صغیر صاحبہ۔ آفتاب صاحب، جناب صدر پروفیسر طارق ستاری صاحب اور ہمارے خصوصی پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اردو، اور تمام معزز حاضرین، اس میں چغتائی جو طرز تحریر اور جو انداز بیان اور جو موضوعات لے کر اردو ادب میں داخل ہوئیں وہ اس سے پہلے نظر نہیں آتے۔ عورت کی کمزوری اور حالات کی ستمگریشی کو اس کی نارسائی اور پسپائی کے حوالے سے سمجھنا اور سمجھانے کی کوشش عصمت چغتائی نے نہایت فنکارانہ ڈھنگ سے کی ہے۔ ان کی حیثیت نہ صرف بیانیہ پر غیر معمولی قدرت کے اعتبار سے مستحکم ہے بلکہ معاصر فکشن نگاروں سے قدرے مختلف بھی ہے۔ ان کے اہم محاصرین میں جن کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے خواجہ احمد عباس اور راجندر سنگھ بیدی۔ ایک حد تک ترقی پسندوں کے مشترک رجحانات کے باوجود ان سبھی کے پسندیدہ موضوعات اور اسالیب بیان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اپنی پیرائے میں بے خوف دماغ اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر لکھا ہے اور اردو فکشن میں بیش قیمت اضافہ کیا ہے۔ عصمت چغتائی کا اہم سروکار سماج کی شفاف حقیقت کو ادب میں اجاگر کرنے سے رہا ہے۔ ان کی خصوصی توجہ اقتصادی بدحالی، معاشرتی فرسودگی، توہم پرستی اور جہالت پر مرکوز رہی ہے، اور انہی کے وسیلوں سے انہوں نے استحصال، عدم مساوات، توہمات، تعصبات، تنگ نظری، رقابت و حسد کے ساتھ ساتھ جنسی ناآسودگی کی پر بھی کھل کر لکھا ہے۔ ان کے نقطۂ نظر سے یہی وہ بنیادی اسباب تھے جو خواتین کی ترقی اور استحکام میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ اس زاویہ نگاہ کے پیش نظر افسانوی اور غیر افسانوی ادب میں انہوں نے ہلچل پیدا کی اور لیڈی چنگیز فاطمہ مضامین بھی لکھے، خاکے بھی، ڈرامے بھی اور افسانے بھی۔ میں یہاں صرف ان کے ناولوں کے تعلق سے گفتگو کروں گی۔ عصمت چغتائی نے عورت کی مکمل شخصیت اور سماجی حیثیت کو اپنے ناولوں کا مرکز و محور بنایا ہے، جس سے نہ صرف ناول نگار متاثر ہوئے بلکہ آنے والی نسلوں نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے اپنے نصف صدی کے ادبی سفر میں 6 طویل اور 4 مختصر ناول لکھے۔ ان کا پہلا ناول ضدی 1940 میں شائع ہوا۔ یہ رومانی ناول ہے جو زندگی کے تضاد اور ذہنی کشمکش کو اجاگر کرتا ہے۔ ٹیڑھی لکیر 1945 میں شائع ہوا۔ اس میں نفسیاتی دباؤ اور گھٹن کی وجہ سے مرکزی کردار شمن کے مزاج میں جو انانیت، بغاوت اور جارحیت پیدا ہوتی ہے اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ دل کی دنیا 1955 میں شائع ہوا۔ یہ سید سالار مسعود غازی کے پس منظر میں یہ ہے اور ایک رومانی ناول ہے۔ پھر 1961 میں معصومہ کے عنوان سے ایک ناول شائع ہوا جو غربت، افلاس اور مجبوری کی کس طرح معصومیت کو کچل دیتی ہے، یہ ناول اس کا غماز ہے۔ سودائی 1964 میں آیا۔ استحصالی قوتیں کس طرح شخصیت کو پارا پارا کر دیتی ہیں، یہ ناول ان حادثات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کے 3 مختصر ناول عجیب آدمی، جنگلی کبوتر اور باندی 1970 میں شائع ہوئے۔ انسانی نفسیات، خواہشات اور جذبات کی ترجمانی کرنے والے یہ ناول جو ہے وہ قاری کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ پھر ان کا ناول ایک قطرہ خون آیا جو 1976 میں شائع ہوا۔ یہ ناول انیس کے مرثیوں سے متاثر ہو کر لکھا گیا۔ اس ناول کی خوبی یہ ہے کہ نسوانی کرداروں کو باشعور، حوصلہ مند، بہادر اور صاحب عزم دکھایا گیا ہے۔ پھر 1988 میں کا ناول 3 اناڑی آیا اور جو بچوں کی نفسیات اور ان کی نگہداشت کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ عصمت کی ناولوں کے مطالعے سے جو منظرنامہ ابھرتا ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں فضا اور ماحول خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ قصہ کہانی جنی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، وہ فضا اور ماحول کی صورتحال کے مطابق کردار خلق کرتی ہیں۔ حقیقی فعال کردار،
स्याह और सफ़ेद रंगों की आमेजिश से मुज़य्यन। मसलन शम्मन के किरदार के मुताले में बचपन से बुढ़ापे तक की तमाम हरकतों को गहरी नज़र से देखते हुए हकीकत को उजागर किया गया है। नफ्सियात और माहौल के असरार के कारसाजी की बुनियाद है। टेढ़ी लकीर की एक खूबी ये भी है कि शमन का बेहद फाल किरदार फर्द का न रहकर मुतवस्सित तबके की हकीकी तस्वीर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसी तस्वीर जो फिल्म की शक्ल में मज़कूरा अहद की पूरी हलचल से कारी को वाकिफ करा देती है। इसमत खुद नावल के पेश लफ्ज़ में लिखती हैं, शम्मन की कहानी किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हजारों लड़कियों की कहानी है। उस दौर की लड़कियों की कहानी जब वो पाबंदियों और आज़ादी के बीच एक खला में लटक रही थी। दिल की दुनिया और टेढ़ी लकीर का लबो लहजा और अंदाज बयान तानीसी है। दोनों में औरत के एहसासात और जज्बात, समाज में मुकाम और मर्तबा और नफ्सियाती अमल व रद्द अमल को मौसर अंदाज में पेश किया गया है। खास तौर पर टेढ़ी लकीर का लहजा तीखा तंजामेज है, जिनके तवस्सुत से औरत की फितरी कमजोरी, जिनसी और नफ्सियाती दबाव को मुनक़िद किया गया है। नौउम्री से जवानी और फिर माँ बनने के मराहिल में समाजी निज़ाम और माशरती माहौल को तंज़े मली के सहारे हमामेज किया गया है। अमल और रद्द अमल के मराहिल किस तरह औरत को बागी बना देते हैं और फिर समाज से टकराने का हौसला और माशरे से इंतकाम लेने की कुव्वत अदा करते हैं, ये नावल इन मराहिल की भरपूर नुमाइंदगी करता है। नावल में बुनत, बर्ताव और लबो लहजे के एतबार से जिद्दत और नुदरत है। इस्मत ने अपने नावलों में निस्वानी कर्ब को औरत की ज़ाविया निगाह से देखा है और उनकी निजी जिंदगी के इज़्तिराब को शिद्दत से महसूस करते हुए जो छवि पेश की है, उस पर इतने तीखे लहजे में शायद ही किसी और फनकार ने इतनी तफसील, तवाज़ुन और शिद्दत से लिखा हो। उन्होंने अगर मर्द की हाकिमाना बरतरी, तजलील और तज़कीक आमेज रवैये की मुखालफत करते हुए औरत को समाज में बाइज्जत तरीके से जीने का बताया है, तो अक्सर मुकाम पर उसकी अपनी जहालत, रिवायत पसंदी और तवहुम परस्ती पर झुंझलाहट का इजहार भी किया है। बल्कि वो उन औरतों से बेजार नजर आती हैं जो हालात से समझौता करने के लिए मजबूर या मर्द के मकरो फरेब का आसानी से शिकार हो जाती है। ऐसा इसलिए कि वो औरत को समझदार, पुरएतमाद, दिलेर और अपने आप को पहचानने वाली औरत की शक्ल में देखने की ख्वाहिशमंद थी। उन्हें आम तर्ज फिक्र से हटकर हाशिए पर रखी जाने वाली औरत के तय राइज रवैयों में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया और माशी व माशरती तवाज़ुन व तब्दीली के लिए सिंफ नावल को आलयकार बनाया। उनके इनहराफी रवैये के बावजूद खुशगवार हवाओं ने दहन पर जमी हुई गर्द को साफ किया है। उनके तामीरी अक़दाम से बिलाशुबहा मंजरनामा बदला है, मगर साथियत के इस दौर में बदली हुई शक्लें कहीं न कहीं औरत को आज भी ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला करने का सबब बन रही हैं। 21वीं सदी की दूसरी दहाई के महज़्ज़ब माहौल में अगर औरत जबर का शिकार हो रही है, तो ये और भी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। इस फजा में इस्मत की तहरीरों की अहमियत और इफादियत और भी बढ़ जाती है। मैं अपनी बात को आखिर में एक जुमले पे खत्म करूँगी। ये सवाल है, ये सवाल मेरे ख्याल से इस्मत के हर नावल के बाद उठाया जा सकता है और आज भी कहा जा सकता है। और वो ये है कि मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, तू कोरा में झूठी क्यों, मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, तू कोरा में झूठी क्यों, तू सोना में खोटी क्यों। ये सवाल आज भी है जो औरत के साथ जुड़ा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शरीफा सगीर साहिबा। इस मुफस्सल और बसीर गुफ्तगू के बाद मैं मोहतरमा डॉक्टर अस्मा काज़मी साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो पोर्ट्रेट की रूनुमाई करें। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वीडियो क्लियर आ रही है?
نہیں یہاں پہ تو نہیں پتہ چل رہا، آپ کی ویڈیو نہیں پتہ چل رہی ہے. آپ پتہ نہیں کیسے، اب یہی میں پوچھ رہی تھی. کیا نام ہے، اسما قاسمی. نہیں آ پا رہی ہے نا، کیونکہ ادھر سے میں نے آن کیا ہوا ہے کیمرہ. میم ابھی آپ کا ویڈیو آف دکھا رہا ہے. آف یہاں پہ شو ہو رہا ہے میم. آف شو ہو رہا ہے. بٹ میری طرف سے ہی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے، میں جب تک کسی کو اور نیکسٹ بلاتا ہوں، آپ جب تک. میں محترمہ ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ سے درخواست کروں گا، آپ آپ کا موضوع ہے عصمت چغتائی کا ناول قطرہ خون کا تجزیہ. تو میں محترمہ ریشما پروین صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں. ناظرین آداب، میرے مقالے کا عنوان جیسا کہ آفتاب بتا چکے ہیں، ایک قطرہ خون، عصمت اور چند سوالات. اور سب سے پہلے تو میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گی کہ اس جلسے میں آج میرے استاد محترم پروفیسر طارق چھتاری صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ شعبہ اردو کے ہیڈ محمد علی جوہر صاحب موجود ہیں. یہ میرے لیے بہت ہی اہم بات ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا، ایک قطرہ خون، عصمت اور چند سوالات، کیونکہ مجھے آفتاب پہلے تنبیہ کر چکے ہیں وقت کی کمی، تو میں براہ راست اپنے موضوع پر آ جاتی ہوں کہ عصمت کی ناول نگاری سے ہم سبھی واقف ہیں. ان کے ناول ضدی، معصومہ، ٹیڑھی لکیر، تقریباً تمام ناولوں کا موضوع وہ استحصالی عورت رہی جو ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود تھی، اور پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہوگا. لیکن بہرحال جس وقت ان کا یہ ناول ایک قطرہ خون منظر عام پر آیا تو اکثریت کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ عصمت جیسی باغی عورت جو ہمیشہ مذہبی تحریکوں سے دور رہی اور جس نے ہمیشہ خود کو ترقی پسند تحریک کے مبلغ کے طور پر پیش کیا، سماجی ناہمواری اور یا عورتوں کے استحصال کو اپنا موضوع بنایا، آخر وہ واقعہ کربلا کو اپنا موضوع کیسے بنا سکتی ہے؟ تو عصمت سے یہ سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آخر آپ نے واقعہ کربلا کو اپنا موضوع بچا تو میں نے انیس کے مرثیے پڑھے اور پھر اس کو میں نے اپنا موضوع بنایا. اس طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ناول جو ہے ایک طرح سے انیس کے مرثیوں کی نسل ہے. لیکن مجھے اس سے ذرا بھی اتفاق نہیں، کیونکہ عصمت جیسی ذہین خاتون وہ 350 صفحے کا ضخیم ناول صرف اس لیے کہ موضوع بدلنا ہے، موضوع کی تبدیلی ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو میں اس کو مان ہی نہیں سکتی. تو بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ اس میں انہوں نے اس ناول میں امام حسین کے ذریعے اپنی بات کہی کہ ایک شخص نے 1400 برس پہلے سامراجی طاقتوں کا کن ہتھیاروں سے مقابلہ کیا، گردن کٹائی، سر نہیں جھکایا. لیکن اس کی یہ معنی ہرگز نہیں کہ صرف موضوع بدلنے کی خاطر عصمت نے یہ ناول لکھا. ایک قطرہ خون میں عصمت جس طرح اسلامی تاریخ، اصول و روایات، تہذیب اور جمہوریت کی بات کرتی ہیں، اس سے ان تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، عصمت بچپن سے ہی حساس طبیعت کی مالک تھی. جب ظلم ہوا انہوں نے احتجاج کیا، پھر چاہے وہ بچپن میں ان کی ماں کے ذریعے انہیں نظر انداز کیا جانا ہو یا بڑے ہو کر زندگی کی جدوجہد، سماجی، سیاسی اور معاشرتی حالات، انسانیت کا درد عصمت کو ہمیشہ تڑپاتا رہا. ان کا یہ اعتراف کہ میر انیس کے مرثیے پڑھ کر اس ناول کو لکھا درست ضرور ہے، مگر ایک قطرہ خون کے بین السطور میں، ملاحظہ کیجیے گا مختصر مقالہ ہے، مگر ایک قطرہ خون کے بین السطور میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. دراصل یہ ناول ایک ایسے دور میں لکھا گیا جو تاریخی اعتبار سے خاصا اہم ہے، جب بنگلہ دیش کے لوگ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آخری لڑائی لڑ رہے تھے. عصمت نے لکھا ہے، میں نے یہ ناول اس وقت لکھنا شروع کیا تھا جب بنگلہ دیش میں موت کا ننگا ناچ جاری تھا اور بنگلہ دیش کے لوگ اپنے حقوق کے لیے سراپا جدوجہد تھے. مجھے اس طرح کی جدوجہد بہت پسند ہے. چنانچہ میں نے اپنے ناول کے لیے ایک تاریخی کردار کا انتخاب کیا جس نے سینکڑوں سال قبل انسانی حقوق کے لیے جنگ کی تھی اور شہید ہوا تھا. یہ امام حسین تھے، رسول اللہ کے نواسے. ایک قطرہ خون میرے نقطۂ نظر میں کسی تبدیلی کا مظہر نہیں، بلکہ آزادی اور ناموس کی خاطر
जद्दोजहद करते अफराद से मेरी कभी ना खत्म होने वाली हमदर्दी का आईनादार। इक़्तिबास खत्म। इस्मत का ये नॉवेल 1976 में शाया हुआ। 1971 में पाकिस्तान के सदर जनरल याहिया खान थे और उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए टिक्का खान को जिम्मेदारी सौंपी थी। उस वक्त पाकिस्तान में, खुसूसन मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात थे। तो 25/5/1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट से लेकर पूरे बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान मशरक़ी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। उस दौरान लाखों लोग मारे गए। बांग्लादेश की यही इंसानी हकूक की लड़ाई इस्मत चुगताई के इस नॉवेल के वजूद में आने का सबब बनी। भले ही एक कतरे खून को वाक़ई करबला और अनीस के मर्सियों के हवाले से पेश किया गया, मगर उसके बैनु सुतूर में इस्मत के ज़हनो दिमाग, शऊर व लाशऊर की कशमकश को बखूबी समझा जा सकता है। इस्मत उस नॉवेल में बारहा इंसानी हमदर्दी की मुबल्लिग नजर आती है। इमाम हुसैन की तकरीर मुलाहिजा कीजिए, ये जुमले इस्मत के इनकलाबी ख्यालात के आईनादार हैं। वो लिखती हैं, बस मेरी एक ही मांग है, अरब कौम को जीने का हक दो, अपनी फौज के बलबूते पर नहीं, खुले मैदान में अपने बुलंद किरदार के बल पर, अपनी सदाकत और इंसाफ पसंदी के सहारे उन्हें कुचले बगैर उनके दिलों को जीत लो। ये शहंशाहियत खत्म करके जमहूरी निजाम कायम करो। जितना तुम और तुम्हारा बेटा खर्च करते हैं, इतना ही हर इंसान को लेने दो। नालायक और नाअहल हाकिमों को माजूल कर दो। मुल्क की दौलत अवाम की भलाई और बहबूदी के लिए सर्फ होने दो, जैसा कि रसूलुल्लाह और दूसरे खुलफाए राशिदीन के जमाने में होता था। तब अरब कौम सारी दुनिया पर छाई हुई थी। मंदरजा बाला इक़्तिबास से अंदाजा होता है कि इस्मत जमहूरियत की सच्ची अलमबरदार पासमें का मौजू वाक़या करबला है, जिसमें शहादत इमाम हुसैन की दास्तान के साथ वो इस्लामी तहजीब नजर आती है जिसकी बुनियाद बाहिमी एहतराम, रवादारी और इंसान दोस्ती पर है। इस कहानी का अहम तरीन रुख सिर्फ शहादत का कर्ब नहीं, बल्कि वो माशरती पसमंदगी है जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह ने रखी थी। ये इक़्तिबास इस्मत के उन्हीं ख्यालात का गमाज़ है जिसमें वो बार बार इंसानी जिंदगी की बेहतरी की बात कर रही हैं। क्या उसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि ये नॉवेल सिर्फ अनीस की मर्सियों की नस्र है? अनीस के मर्सियों में इस वाक़े की मुलाहिजा कीजिएगा, अनीस के मर्सियों में इस वाक़े की नौइयत मजहबी और अखलाकी है, जबकि इस्मत बार बार जमहूरियत और इस्लामी निज़ाम जिंदगी की बात करती हैं और बड़ी तफसील से उन तमाम जहतों पर इज़हार ख्याल करती हैं। जाहिर है इसके लिए नॉवेल से ज्यादा मौजू और कौन सी सिंफ हो सकती थी। इस नॉवेल को लिखते वक्त इस्मत के पेश नजर एक खास मकसद था। वो वाक़या करबला को अलामत बनाकर उन अक़दार की बाजियाब करना चाहती थी जिन्हें हम आज फरामोश कर चुके हैं। करबला को अलामत बना जिन्हें आज हम फरामोश कर चुके हैं, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना चाहती थी जिसने आज सियासी और माशरती एतबार से कौम व मुल्क को तबाह बर्बाद कर रखा है। यही वजह है कि वो उस मौजू की तरफ माइल हुई। इस नॉवेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने किसी जगह भी इस अजीम कुर्बानी के इंसानी और अखलाकी मकसद को कम नहीं होने दिया है, और ये सारा वाकया जो मजहबी पसमंजर, मजालिस और मरसिया गोई की वजह से सिर्फ रोने रुलाने का वाकया होकर रह गया था, उसकी अजमत और असल मकसद को नुमाया करके उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। एक और सवाल बार बार जहन में आता है कि इस नॉवेल का उन्वान एक कतरा खून क्यों रखा गया? क्या एक कतरा लहू उस अजीम कुर्बानी को पेश करने के लिए काफी है, या इस्मत इस उन्वान को अलामत बनाकर कुछ और कहना चाहती है? इमाम हुसैन इब्न अली का खुतबा मुलाहिजा कीजिए, मौत आज भी आनी है और कल भी, तो यारो क्यों ना इसे पूरे वकार से लब्बैक कहें। हम जानते हैं दुश्मन की फौज ज़ख़ीम है, बेहतरीन हथियारों से लैस है, ताज़ा दम घोड़े हैं। इस जबर तशद्दुद के मुकाबले में हम फ़कत एक कतरा हैं, मगर बाखुदा ये कतरा आज तूफान बनने का तहैया करता है। हजरत सज्जाद से इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे बहादुर बेटे, दिल को मजबूत करो, अभी जंग खत्म नहीं हुई, ये तो इब्तिदा है। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी जंग जारी रहेगी। मजबूर मकहूर इंसान अपने हुकूक की हिफाजत के लिए लड़ता रहेगा। ये कतरा कतरा लहू जमा होता रहेगा, फिर एक दिन ये तूफान बन जाएगा और जुल्म व सितम के बानी इसमें गर्क हो जाएंगे। मंदरजा बाला इक़्तिबासात फ़िक्र इस्मत की दलील है। उनका एक एक लफ्ज, एक एक जुमला इशारा करता है कि किसी भी इनकलाब का आगाज यकलख नहीं होता, जुल्म का खात्मा अचानक नहीं होता, उसके लिए हालात बनते हैं, कुर्बानियां दी जाती हैं, लहू बहाया जाता है और यही लहू एक दिन रंग लाता है। मजलूम मजबूर इंसानों की आहें, उनके जख्मों से रिश्ते लहू के कतरे तूफान बन जाते हैं और जालिम हुक्मरानों की हुकूमतों को ले डूबते हैं, जैसा कि यजीद के साथ हुआ। इमाम हुसैन की 72 अफराद पर मुश्तमिल फौज ने
बड़े बड़े सरदारों के कदम उखाड़ दिए और आखिरकार शहादत के बावजूद खानदान हुसैन यजीद के लिए तूफान बन गया। मौज़ूआती सतह पर बार बार ये बात कही जाती है कि इस्मत ने सिर्फ खवातीन की वकालत की, उनका मैदान महदूद है, लेकिन ये नॉवेल एक कतरे खून उस जुर्रतमंद कलमकार को और भी बुलंदी पर ले जाता है, जहां वो सिर्फ हुकूक निस्वा की बातें नहीं करती बल्कि उस समाज को राह दिखाने की कोशिश करती हैं जिसमें हमेशा इंसाफ और रवादारी का खून किया गया, इंसान को इंसान नहीं समझा गया। अगर गौर करें तो आज भी हमारे समाज माशरे में क्या यही हाल नहीं है? आज हमारी कौम के सियासी हालात उससे ज्यादा खराब नहीं है? असरे हाजिर में कुर्सी के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा है? हर शख्स दौलत और ओहदे के लिए यजीद बना हुआ है। इन हालात में इस्मत का ये नॉवेल गहरी मानवियत रखता है। आज हमें अपने माशरे की इस्लाह के लिए हुसैन की सख्त जरूरत है। इस्मत ने ये नॉवेल लिखकर यकीनन वक्त की एक अहम जरूरत को पूरा किया है। इस नॉवेल के जरिए इमाम हुसैन के ख्यालात को पेश करके निहायत सादा और सलीस अंदाज में इस्मत माशरे को जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद होकर जुल्म का मुकाबला करने के लिए कमर बस्ता करती हैं। इंसानी जिंदगी की भलाई, उरूज, तरक्की और सबको बराबरी का हक देने की वकालत करती हैं। और अगर ये बात उन्होंने बराह रास्त कही होती तो इस्मत की बात गालिबन लोगों के लिए कोई खास असर नहीं रखती। इसलिए उन्होंने इकबाल की तरह नस्र की तीसरी आवाज से काम लिया, यानी इमाम हुसैन की जबान से अपनी बात कही। इस्मत ने वाक़या करबला को अलामत बनाकर इंसान और इंसानियत को बाकी रखने के लिए हमेशा कमर बस्ता रहने और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की तरगीब दी है। मुलाहिजा कीजिए, वो लिखती हैं, वो जो आज मैदानी जंग में शहीद होने वालों के बाद जिंदा बच जाएंगे, वो सारी उम्र बूंद बूंद जहर पिएंगे और इस जंग को जारी रखेंगे। तुम एक सिपाही के फर्जंद हो सज्जाद, अब इस जंग को जारी रखना तुम्हारा फर्ज है। ये बात इमाम हुसैन की जबान से इस्मत चुगताई ने कही है। क्या आज हम सब इस जंग को नहीं जारी रखे हुए हैं? फिर कैसे इस्मत के इस कारनामे को सिर्फ मीर अनीस की मर्जियों की नस्ल कह सकते हैं? एक कतरे खून गमे हुसैन को मशल बनाकर तहरीर हुआ है। जदीदियत के मुताबिक हम मतन से नतीजा अक्स करते हैं। मतन तो यही कह रहा है कि इस्मत चुगताई ने वाक़या करबला को अलामत बनाकर माशरे को बहुत अजीम पैगाम दिया है। जदीद शोरा ने जिस तरह वाक़या करबला को एहतजाज मुज़ाहिमत के लिए इस्तेमाल किया, इस्मत ने नस्र में उसी अलामती तर्ज के जरिए अपनी बात कही, मगर अजीब बात है कि उनकी इस खूबी को नजरअंदाज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा पेशा परवीन साहब, बहुत इस पेपर के लिए बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया जी, मैं ये ख़ास महीना भी मुहर्रम का है और इस हवाले से अगर इस पेपर को देखा जाए और इसमें जो इस्मत आपा ने जो पैगाम हमें दिया है इस तरीके से अलामत के ज़रिए, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है बात। और मैं इसके बाद फिर से अस्मा काज़मी साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो उनका वीडियो सही हो गया हो तो ज़रा तशरीफ़ लाएँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ कि पहले आपका इजहार करें। डॉक्टर आफ्ताब आलम नजमी साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी एक अनाउंसमेंट छोटा सा कर दीजिए। जी जी जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हम जो मुकर्रिरीन हजरात हैं और मेहमान खुसूसी और मेहमान एजाजी हैं, और उनकी एक 30 सेकंड की क्लिप जो है किसी से मोबाइल में बनवा के वो आपको सेंड कर दें। 30 मिनट की वीडियो क्लिप, 30 सेकंड की, सॉरी जी। मैं तमाम खातरीन से जो मुकर्रिरीन से दरख्वास्त है कि वो 30 सेकंड की वीडियो किसी दूसरे मोबाइल से बनवा के वो हमें जो है भेज दें मोबाइल पे ही, ताकि हम जो है उस लाइव जो है वहाँ पर जो एक नेटवर्क है उसके ज़रिए से हम जो है वो न्यूज़ में भी और चैनल पे भी दिखा सकें। तो अब मैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ, तशरीफ़ लाएं। आवाज़ आ रही है अख्तर भाई?
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اختر صاحب خود کو ان میوٹ کیجیے, خود کو ان میوٹ کیجیے اختر صاحب. اختر صاحب خود کو ان میوٹ کیجیے پہلے, آپ کا آڈیو آف ہے. اختر بھائی آپ کا آڈیو آف ہے. میرے خیال سے آفتاب بھائی کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے شاید, تو ہم دوبارہ سے لوٹ کے آ جائیں, شاید وہ زیادہ مناسب ہوگا. جی, میں فاطمہ علیبہ, ڈاکٹر فاطمہ علیبہ سے گزارش کرتا ہوں اگر موجود ہیں. جی فاطمہ علیبہ صاحبہ, یہ آپ کا جو تحقیقی کام ہے, میں ایک منٹ آپ بتا دوں, یہ ورجینیا وولف اور عصمت چغتائی پر بنیادی کام ان کا ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس موضوع پر, اس لیے بطور, اور ہندی زبان میں یہ پی ایچ ڈی ہے. تو ہم نے ان کو اس لیے بطور خاص اس پروگرام میں انوائٹ کیا کہ وہ جو ہے اس نقطۂ نظر سے اور اس زاویے سے جو ہے ایک دیکھنا جو ہے بالکل ایک الگ ہوگا, اور اس طریقے سے جو ہے ہم کچھ نئی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ورجینیا وولف اور عصمت چغتائی کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں مشترکہ تھیں, اور کچھ چیزیں جو ہے کس حد تک دونوں جو ہے ایک دوسرے سے مختلف اور منفرد تھے. تو میں گزارش کرتا ہوں فاطمہ علیبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ایوری ون. فرسٹ لیٹ می نو, am I audible? جی جی Sir, am I بالکل. audible? Yes, Okay, yes. thank you. Here is ڈاکٹر فاطمہ علیبہ. میں نے ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے پی ایچ ڈی کی ہے. میرا پی ایچ ڈی ٹائٹل واز کمپیریٹیو لٹریچر بٹوین ورجینیا وولف اینڈ عصمت چغتائی. سب سے پہلے میں اپنی دلی خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گی کیونکہ اس پروگرام میں میری سپروائزر پروفیسر سمینہ خان موجود ہیں, اور دوسرے میرے وہ استاد ڈپارٹمنٹ آف اردو کے جن کو میں بار بار وقت پہ جا کر پریشان کرتی تھی, پروفیسر طارق ستاری پر. So thanks for your cooperation and support, and thanks for my supervisor, Professor Samina Khan. میں نے عصمت چغتائی کی شخصیت اور فن پر کچھ لکھا تھا, لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ان کی شخصیت پر تو روشنی نہیں ڈالوں گی, لیکن ان کے فن پر بات کرنا چاہوں گی. اچھا, میں فن کو جس طرح سے ڈسکس کروں گی, دیٹ از دا, سب سے پہلی بات میں معذرت کروں گی کہ میں پراپر اردو میں نہیں بول پاؤں گی, آپ لوگوں کی طرح ایک بہترین اردو میں نہیں بول پاؤں گی. میں ہندوستانی میں بولوں, جیسا آپ کو مناسب لگے. تھینک یو سر. میں ہندوستانی میں بولوں گی, ہندی اردو انگلش سب کا گھول. تو عصمت چغتائی کے اگر افسانوں کی بات کریں تو میں نے اپنی پوری تھیسس میں ایشو بیسڈ اسٹڈی کی ہے. کچھ ایشوز ہیں جو آپ کو ایسٹ میں بھی ملیں گے اور ویسٹ میں بھی ملیں گے, جیسے پیٹریارکی کا ایشو ہے, اسٹیریوٹائپ ویمن کا ایشو ہے, لیکن اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے الگ رہا ہے, ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں بھی. سب سے پہلے اگر ہم اس ایشو پر بات کریں, کانسیپٹ آف دا اسٹیریوٹائپ ویمن, مطلب وکٹورین ایج میں جو آپ کا وکٹورین سینچری چل, دیٹ واز دا 19th سینچری وکٹورین ایج, انگلینڈ میں ایک کانسیپٹ آیا تھا اینجل ان دا ہاؤس. اور مجھے لگتا ہے ہندوستان میں جس وقت عصمت چغتائی لکھ رہی تھی, عصمت چغتائی کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے یہ کانسیپٹ ہندوستان میں بھی موجود تھا, بس اس کا نام بدل دیا گیا. میرے حساب سے اس کا نام ہندوستان میں پکی گرہستن ہے, اور افسانوں میں عصمت چغتائی کے آپ کو ایسی بہت ساری ویمن کیریکٹر ملیں گی جو پکی گرہستن ثابت ہوئی ہیں. پہلا افسانہ ہم ان کا ڈسکس کرتے ہیں, دیٹ از بھابھی. بھابھی جو ان کا افسانہ ہے, اس میں بیچاری بھابھی اپنی پوری زندگی اپنے شوہر, اپنے گھر, اپنے بچوں کے لیے, اپنی گرہستی کے لیے سیکریفائس کر دیتی ہے, اور ان کو بدلے میں کیا ملتا ہے, طلاق نام کا تحفہ.
इसी तरह से उनका एक और अफसाना है घूंघट। ये अफसाना मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग रहा है हमेशा, क्योंकि इसमें बहुत मज़ाहिया तरह से इसमें चुगताई ने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट किया है। सबसे पहली लाइन इसमें यही है, गोरी भी इतनी गोरी थी जितने काली मियाँ काले थे। तो आम तौर पर जब शादी होती है गोरे मियाँ की गोरी बी की काली मियाँ से, तो लोग बोलते हैं अरे काली मियाँ आप तो गोरी बी को जब पहली बार छुएंगे तो गोरी बी तो जल जाएंगी। अब काले मियाँ का तो मेल ईगो सामने आना ही था, उन्होंने सोच लिया मैं तो घूंघट नहीं उठाऊंगा पहली रात को। अब सोसाइटी की वो टीचिंग जो बचपन से एक औरत को दी जाती है, शराफत की वो टीचिंग जिसके हिसाब से ये समझाया जाता है कि घूंघट तो पहली रात आता है, इस हद तक गोरी बी में एम्बाइब्ड थी कि मुआशरे की वो शरीफ खवातीन जब उनको बोलती हैं कि अरे क्या हुआ अगर काले मियाँ तुम्हारा घूंघट नहीं उठाए तो तुम खुद उठा लो, लेकिन वो घूंघट नहीं उठाते। खैर कहानी इस तरह से शुरू होती है, शादी होती है, काले मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। जब शादी होती है काले मियाँ और गोरी बी की, काले मियाँ को तो मेल ईगो सामने आ चुका था, उन्होंने तो सोच लिया था मैं तो घूंघट नहीं उठाऊंगा। जाते हैं हुक्म देते हैं घूंघट उठाओ। गोरी बी को भी ये सोसाइटी की शराफत की टीचिंग इस हद तक एम्बाइब थी कि वो उसे तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती थी। उन्होंने बोल दिया घूंघट तो मैं नहीं उठाऊंगी। फिर उन्होंने हुक्म दिया घूंघट उठाओ वरना जिंदगी भर अनछुई कुंवारी रह जाओगे। और हुआ भी यही, 3 बार बेचारी गोरी भी दुल्हन बनती है और तीनों बार काले मियाँ का मेल ईगो सामने आ जाता है और वो वही हुक्म देते हैं घूंघट उठाओ, लेकिन गोरी भी घूंघट नहीं उठाती और जिंदगी भर गोरी भी इस मुआशरे की शराफत की टीचिंग को फॉलो करती रही और जिंदगी भर लास्ट टाइम तक अनछुई ही रह गई। और काले मियाँ उन्होंने तो अपनी जवानी को गैर औरतों से रंगीन बना ही लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं पैट्रियार्की की बात करूं, पैट्रियार्कल मैन की बात करूं, तो इसमें चुगताई के अफसानों में ऐसे आपको बहुत सारे मर्दों के किरदार मिलेंगे जो औरत को अपनी मिल्कियत समझते हैं, जो शादी के रिश्ते को एक मालिक और गुलाम का रिश्ता समझकर औरत पर हुकूमत करना पसंद करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक अफसाने का जिक्र किया भाभी, इस अफसाने में एक भाई का कैरेक्टर है, क्योंकि भाभी अब मोटी भद्दी हो चुकी थी इतने बच्चों के बाद, घर गृहस्थी का बोझ उठाने के बाद। तो भाई जो अभी जवान लगते थे होंगे तो शायद 45 साल के, इस बात चुगताई के खुद की लैंग्वेज जो मैं आपके सामने कोट कर रही हूँ, वो कहाँ इंटरेस्ट लेते भाभी में, उन्होंने भी एक नौजवान हसीना से दिल लगा ही लिया शबनम। यहाँ पर बाकायदा एक लाइन में कोट करती हूँ उसमें चुगताई की, जहाँ पर उन्होंने कहा है मर्द सोच मजबूत पहाड़ की तरह है जिसके सामने कमजोर लहरें आकर दम तोड़ ही देती हैं। एक और उनका अफसाना है बेकार, इंग्लिश में इसका टाइटल है अनएम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है कि बेकार अफसाने में बंधु मियाँ तो बेचारे कुछ कमाते वमाते हैं नहीं, सॉरी बाखर मियाँ इनका नाम है, बाखर मियाँ कुछ कमाते नहीं है और अपने घर का बोझ उठाने के लिए, गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए, बच्चों के लिए हाजिरा की नौकरी कर देती है। नौकरी करती तो वो जरूर है लेकिन उनको सुनने को बहुत कुछ मिलता है, बेहयाई के ताने सुनने को मिलते हैं। बहरहाल गृहस्थी चलाने के लिए वो नौकरी करती है। यहाँ पर मुझे लगता है इसमें चुगताई ने हम जैसे रीडर्स, हम जैसे रिसर्चर्स को एक क्वेश्चन दिया है कि जब एक मर्द पैसा कमाकर घर में लाता है तो औरत तो उसका दिल खोल कर इस्तेमाल करती है, और फिर एक मर्द औरत पर हुक्म भी चलाता है, लेकिन जब एक औरत पैसा कमा कर घर में आती है तो मर्द उसका दिल खोल कर इस्तेमाल नहीं करता। एक कमाने वाली औरत हुक्म भी नहीं चला सकती अपने मर्द पर। एक लाइन इस्तेमाल करिए इसमें चुगताई में, एक कमाने वाला मर्द फिरौन और एक कमाने वाली औरत मुजरिम। अच्छा, इसमें चुगताई के अफसानों में आपको ऐसी भी औरतें मिलेंगी, ऐसे भी वीमेन कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी जिंदगी की लकीर अलग खींचते हैं। ये शराफत वाली लकीर पर नहीं चलते, इस मुआशरे की दी हुई शराफत वाली लाइन पर नहीं चलती हैं औरतें, ये अपनी जिंदगी की लाइन अलग खींचते हैं। इन्हें परवाह नहीं होती कि ये मुआशरा उस लकीर को चाहे टेढ़ी लकीर कहे, ये बेहयाई की लकीर है, ये चलती रहती है।
ये ऐसी वीमेन कैरेक्टर हैं जो हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हम मर्दों से मुख्तलिफ एक मुकम्मल इंसान हैं, जीते जाते एक मुकम्मल इंसान जो मर्दों की तरह सांस भी लेते हैं, मर्दों की तरह ख्वाब भी देख सकते हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको इसमें चुगताई के एक अफसाना है, इश्क पर जोर नहीं। इश्क पर जोर नहीं, इसमें एक कैरेक्टर है खलीफन। यहाँ पर भी इसमें चुगताई ने हम रीडर्स को एक क्वेश्चन दिया है कि ये जो मुआशरा है ये मर्दों की शादी की उम्र तय नहीं करता। मर्द किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं और उन्हें कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन औरतों के माँ बनने की डॉक्टर फातिमा, आपकी आवाज एक बार थोड़ा अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Am I audible? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो हम इसमें चुगताई की उन विमेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की लकीरें अलग की। जैसे अगर हम बात करें उनके इस अफसाने की इश्क पर जोर नहीं, इसमें खलीफन का कैरेक्टर है। इसमें चुगताई ने एक क्वेश्चन हम जैसे रीडर्स को दिया, हम जैसे रिसर्चर्स को दिया है कि ये मुआशरा और मर्दों की शादी पर पाबंदी लगाता। मर्द अगर बुढ़ापे में शादी करे तो यही बोला जाता है अरे सहारे के लिए शादी करे, लेकिन औरत के माँ बनने की उम्र भी ये मुआशरा तय करता है, उसकी दूसरी पहली शादी सबकी उम्र ये मुआशरा तय करता है। खलीफन 45 साल की होंगी तकरीबन और खलीफा का इंतकाल 4 से 5 साल पहले हो चुका था। खलीफन को पैसों की कोई, खलीफन इज द फीमेल कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने एक लाइन भी यूज करी है, सिर्फ खर्चा ही जिंदगी के लिए काफी नहीं होता। खलीफन दूसरी शादी करती हैं। अब जो वो दूसरी शादी करती हैं इस माशरे की शरीफ औरतों में खुतुर खुतुर शुरू हो जाती है और इसमें चुगताई ने खूबसूरत लाइन उनके लिए यूज करी है, भला बताओ खलीफन अब 45 की लपेट में होंगी, इस उम्र में तो हिंदुस्तान में औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, किसी और से दिल्लगी करने के बजाय खुदा से लौ लगाती हैं, और खलीफन को देखो दूसरी शादी कर ली। खैर खलीफन ने ये जो दूसरी शादी करी थी अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ही, जिस्मानी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। इसके अलावा हमें न्यू विमेन के कैरेक्टर में उनका एक बेहतरीन अफसाना, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। कैसी बीवी कैसा शौहर, पूरा डोमेस्टिक वायलेंस बेस्ड अफसाना है। इसमें आमिना बी एक कैरेक्टर है। आमिना बी की जब नई नई शादी हुई थी उस वक्त वो अपने शौहर की आंखों पर तारा हुआ, लेकिन अब उनकी हालत एक पुरानी चीज से कम नहीं थी। यहाँ पर नैरेटर खुद इसमें चुगताई ही है। तो आमिना भी नैरेटर के पास आती हैं, वो अपने हालात को बयान करती हैं। नैरेटर मतलब इसमें चुगताई बोलते हैं, देखो बीबी तुम कुछ करने धरने की हदों से तो गुजर चुकी हो। तुम्हारी नानी दादी ने तुम्हारी घुट्टी में जो औरत की कमतरी का घोल मिला के पिलाया है ना, वो किसी तालीम से तो और नसीहत से तो मिट नहीं सकता। यहाँ पे नैरेटर मतलब इसमें चुगताई उनकी कोई फाइनेंशियल माली मदद नहीं करती, बल्कि उनको एहसास दिलाती है कि तुम भी अपने शौहर की तरह कमा सकती है और जब कमाओगी तो इज्जत हासिल करोगी। इंडिपेंडेंट विमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको यहाँ पर मिलता है। आमिना भी कमाना शुरू करती हैं और उसके बाद जब उनका शौहर जूता लेकर उन्हें मारने के लिए खड़ा होता है, बाकायदा इसमें चुगताई ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जब जूता मारने के लिए उनके लिए खड़ा होता है तो वो बेलन लेकर उनका सामना करती है। इस पर मुझे अभी बॉलीवुड की रिलीज रिसेंट मूवी याद आती है, दैट इज थप्पड़। थप्पड़ मूवी में क्या होता है, वो अपनी पिटीशन लिखवाने जब जाती है तापसी पन्नू से पूछा जाता है क्या आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो बोलते एक थप्पड़ मारा है। तो बोलते सिर्फ एक थप्पड़ की किस तरह तलाक ले रही हैं, तो बोलती है वो सिर्फ एक थप्पड़ था
लेकिन नहीं मार सकते। मुझे सिर्फ यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है, जब पहली बार आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, जब पहली बार आपके हुकूक की हक तलफी हो, आपको तभी आवाज़ उठानी है। इस्मत की ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ये देखने को मिलेगा, पहली बार उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी जब वो महज 13 साल की थी। उनसे उनका तालीम का हक छीना जा रहा। इसके अलावा उनके ऐसे भी वीमेन कैरेक्टर हैं जैसे चिड़ी की दुग्गी, ये मुझे बहुत अच्छा उनका अफसाना लगता है, क्योंकि इस पूरे टाइटल में ही अलग मज़ा है। ताश के पत्तों में दुग्गी की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर वो तुरुप की हो तो हुक्म का इक्का भी कट जाता है। जैसे इस माशरे में औरत की कोई अहमियत नहीं होती, इस माशरे के हिसाब से अगर वो तालीम याफ्ता हो, इंडिपेंडेंट हो, तो वो बड़े से बड़े हुक्म के इक्के को काट सकती है। इसके अलावा मैं और इश्यूज पर उनके बात करूंगी, जैसे कि उन्होंने डॉक्टर फातिमा थोड़ा सा मुख्तसर कर लीजिएगा इसको। दिस इज द लास्ट इशू, फीमेल बर्थ चाइल्ड का इशू, मतलब कि जिन घरों में और लड़कियों की पैदाइश हो जाती है तो ज़्यादातर उमन तौर पर उन्हें वेलकम नहीं किया जाता है। इस पर भी इस्मत चुगताई ने अफसाना लिखा है सोने का अंडा। बंधु मियाँ के यहाँ तीसरी बार लड़की पैदा हो जाती है और वो इतने अपसेट होते हैं जैसे कि कोई डकैत आकर उनकी सारी जायदाद को, सारे खजाने को लूट कर ले गया। एक लाइन इसमें चुगताई ने यूज करी है जहाँ पर बंधु मियाँ कहते हैं, तीसरी बार भी लड़की, तो तीन जहेजों का बोझ, हाँ, तीन इसी का नखरे। Am I audible? जी जी आप बोलिए। Okay, thank you sir. लेकिन लेटर हाफ ऑफ दिस स्टोरी बंधु मियाँ को एहसास होता है कि मेरी ये तीनों लड़कियाँ कोई कांटेदार झाड़ियाँ नहीं है, मेरी ये तीनों लड़कियाँ मुझे बुढ़ापे में साया देने वाले दरख्त बन सकते हैं अगर मैं इनकी अच्छी तरह से परवरिश करूँ। इस पे एक रिसेंट, मुझे ऐसा लगता है दंगल मूवी इसका ही अडेप्टेशन है, जहाँ पर आमिर खान को लास्ट में रियलाइज होता है, मारी छोड़ियाँ कि छोरों से कम है, आज से गिफ्ता बगिफ्ता, न चूल्हा करेंगी न चौका करेंगी, न झाड़ू करेंगी न पोंछा करेंगी, आज से गिफ्ता बगिफ्ता, पहलवानी करेंगी, पहलवानी तो इनके खून में है। तो मुझे लगता है दंगल मूवी इसका परफेक्ट अडेप्टेशन है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे इश्यूज के बारे में लिखा, जैसे डाउरी का इशू है, प्रोस्टिट्यूशन का इशू है, जो मासूमा उन्होंने पूरा नॉवल प्रोस्टिट्यूशन पर लिख डाला। उनका एक अफसाना है निवाला, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात करता है, जिसमें बोला जाता है कि मर्द सीधा साधा निवाला खाना पसंद नहीं करते, उसमें उनको चटनी भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। मतलब कि एक औरत को सिखाया जाता है इस मुआशरे की टीचिंग के हिसाब से एक मर्द को कैसे रिझाया जाएगा। सरला बैग इसमें कैरेक्टर है। इसके अलावा छुईमुई उनका अफसाना है, जिसमें इनफर्टिलिटी के इशूज को उन्होंने बहुत डिटेल में बयान किया है। इस सब को मैंने वर्जीनिया वुल्फ के कैरेक्टर्स, उनके नॉवेल्स के साथ कंपेयर किया था। वक्त की कमी की वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। थैंक्स फॉर दिस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा अलीबा, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं अब इशरत जहाँ से दरख्वास्त करता हूँ। इशरत जहाँ मौजूद हैं? जी सर। जी एक मिनट, मैं इशरत जहाँ ये इस्मत चुगताई और मंटो का तकाबली मुताला उनके अफसानों का, इस पर इनकी PhD है, कर रही हैं इस वक्त, और हमने इनसे भी दरख्वास्त की थी इसलिए कि ये भी एक नया जाविया है और इस जाविये से हम जो है इस्मत आपा को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी कुछ जिस तरह से फातिमा ने बिल्कुल अलग तरीके से जो है कुछ चीज़ों को हमें बताया और हम लोगों को काफ़ी जो है ये गुफ्तगू सूदमंद साबित हुई, इसी तरह से मुझे यकीन है कि इशरत जहाँ भी जो है वो कुछ अहम पहलुओं की तरफ रोशनी डालेंगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ इशरत जहाँ से तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपके इस का शुक्रिया अदा करूंगी जिनकी वजह से मुझे आप सबके
इशरत आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी सर, आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, अब आप बोलिए। मेरे मौजूद चूंकि मंटो और इस्मत के अफसानों का तकाबली मुताला है। वैसे तो हमारी गुफ्तगू का मौजू इस्मत चुगताई है, लेकिन जहाँ इस्मत चुगताई का नाम है वहाँ मंटो का होना लाजमी है, इसलिए हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। चुनांचे मंटो और इस्मत चुगताई दो ऐसे अहम अदीब हैं जिनकी गैर मामूली तहरीरों ने उन्हें एक गैर मामूली मकाम अता किया। आज इतने अरसे बाद भी हम 20वीं सदी के इस रोशन ख्याल तकरीब पसंद जरूरतमंद अदीब के अफसानों से इनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ये डॉक्टर जा रही है? हाँ बोलिए, आप आवाज कट जा रही है बीच में। जी सर, आज एक अरसे बाद भी हम इसी सर के इस रोशन ख्याल तरक्की पसंद जरूरतमंद अदीब के अफसानों से लुत्फानंदोज होते हैं। आज भी इन दोनों की कहानियां आज में मौजूद तमाम तर हकीकत की रुदार बयान करते हैं। मंटो और इस्मत दोनों ने हकीकत की तलाश सिर्फ इस हद तक नहीं की जिंदगी का नक्शा क्या है, बल्कि इन्होंने अफराद की अंदरूनी ज़ात में ये भी देखा कि जिंदगी ऐसी क्यों है। उन्होंने ज़ाहिरी हकीकत की नकाब नोच कर उसके असल चेहरे को देखा। निगाह है जो मशक़त से थोड़ी मजबूती के साथ पेश करती है, क्योंकि को सिर्फ वो हुस्न व इश्क और मोहब्बत व रोमान की चीज नहीं समझा, बल्कि अपने अफसानों में औरत के मसाइल क्या हैं, औरतों के हुकूक क्या हैं, औरतों की जज्बात व नफ्सियात क्या हैं, इन तमाम मामलात को एक औरत की निगाह से देखा। इस्मत ने हर घर की औरतों पर सोने का अंडा, सास, दिल का फिर पेश से काबिल है, जिनमें निसाई किरदारों की मुख्तलिफ समाजी हैसियत को उजागर समाज के जैसे माना पड़ा है, जिस समाज में इंसानी के लिए रिश्ता तलाश करना मुश्किल है। हमीदा अपनी बहन कुबरा के बारे में क्या सोच रही है? एक बात सुना दो, क्या मेरी आका मर्द की भूखी है? नहीं, वो भूख इशरत आपकी आवाज मुसलसल जो है नहीं हो पा रही है कनेक्ट, तो आप इसको बाद में आप मुझे जो है भेज दीजिएगा इस पेपर को। मैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब। हेलो।
जी बोलिए आप। अच्छा ठीक है। जी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर तारिक साहब, प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर साहब, सदर शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अली बिरादरी खुर्द आफ्ताब नजमी साहब और दीगर तमाम शुरका, तस्लीम व आदाब। असमत चगताई के अफसानों के हवाले से कई लोगों ने गुफ्तगू की है। बहुत से लोगों ने उनके कुछ अफसानों पर, कुछ नावलों पर और बहुत से उनकी जिंदगी के असरार रमूज के हवाले से बातें कही हैं। मैं सिर्फ उनके अफसानों के मौज़ूआत के हवाले से चंद बातें कहना चाहता हूँ। असमत चगताई, मंटो, बेबी और कृष्ण चंद्र जैसे अजीम फनकारों की हम असर थी। इन तीन बड़े अफसाना निगारों की मौजूदगी में असमत चगताई का फिक्शन के मंजरनामे पर तुलू होना और अपना वजूद तस्लीम कराना खुद एक अजीम कारनामा है। असमत चगताई ने गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत, मुशाहिदात और तजर्बात की वुसअत से काम लेते हुए जिंदगी की सच्चाइयों से आंखें मिलाने का हुनर सीखा। उनकी तीखी और बारीक नजर खुरदुरी मगर जिंदगी की सच्चाइयों पर रहती थी। उन्होंने कदामत परस्ती के ताक़ुन भरे माहौल में मौजूद तशद्दुद, जबर, रियाकारी, बदआमाली और जिनसी घुटन जैसे मौज़ूआत को अपना हदफ बनाया। असमत चगताई माशरे की सफ़ाक नाक़िद और बागी सिफत खातून थी। वो हर तबके और हर उम्र के इंसानी रिश्तों में मौजूद गिरोहों को एक ख़ास ज़ाविये नज़र से देखती थी और फिर बेबाकी से अपनी तख्लीक़ात में पेश करती थी। असमत का कमाल यह है कि उन्होंने मौजू की मुनासिबत से ज़बान और मुहावरात का भी इंतखाब किया है और इसी शय ने उनकी तख्लीक़ात को मज़ीद तक़वियत बख्शी है। उनके नावलों और अफसानों में मुआशरे के जिन मसाइलों मुश्किलात को पेश किया गया है वो आज भी रिश्ते हुए नासूर की तरह है। अभी आपने देखा, इससे पहले भी कई लोगों ने खासतौर से औरतों के हवाले से समाज में, मुआशरे में जो तासुब है, जो नफरत है और जिस तरह का सौतीला रवैया अपनाया जाता है, ये सब असमत ने अब और एक ऐसे वक्त में इस पर गुफ्तगू की जब शायरी करना किसी औरत के लिए या अफसाना लिखना किसी औरत के लिए खुद एक गुनाह समझा जाता था। असमत ने औरत का इस्तेसाल, दकियानूसियत, अदम मवासा और जिन्स जैसे बहुत से मामला को अपने मौज़ूआत में शामिल किया है। असमत के अफसानों में गेंदा, फसादी से लेकर गुलदान तक का मुताला करें तो हमें वो समाजी इंसिलाकात की अफसाना निगार नजर आती हैं। साथ ही मुतवस्सित खानदान के ज़हनी व जिस्मानी मसाइल और उनके फितरी रद्द-ए-अमल का एक एहतिसाब भी नजर आएगा। लिहाज, जिद्दी वगैरह को अगर नजरअंदाज भी कर दें तो असमत का असल कारनामा चौथी का जोड़ा, बेकार, चढ़े, नन्ही की नानी और बिच्छू फूफी को करार दिया जा सकता है। असमत चगताई के अंदाज़े बयान में गहरा तंज, तीखापन, बाग़ियाना लबो लहजा, दो टोक बात कहने का हुनर मौजूद है। उन्होंने इंसानी जिंदगी, खुसूसन शुरफा के चेहरे पर पड़े नकाब को तार तार किया और उन पहलुओं की अक्कासी की जिसकी जसारत मंटो के अलावा कोई और दूसरा अफसाना निगार आज तक न कर सका। असमत ने अपने मौज़ूआत के हवाले से एक मौके पर कहा था, इक़्तिबास मेरा फन, मैं अपने माशरे में होने वाले ऐसे तमाम वाक़यात को अपनी तख्लीक़ात का मौजू बनाऊं जिनमें इस्तिहसाली तबका किसी इंसान, बिलखुसूस औरतों पर जुल्म रवा रखता है और नामहसूस तरीके से मजहब या रीत का सहारा लेकर उनका इस्तेहसाल करता हो। हमारे यहाँ या हम जिस माशरे में सांस ले रहे हैं उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बहुत सी चीजों को मजहब के नाम पर या रस्म व रवाज के नाम पर
اس کو طے کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اس کے پس پشت کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا استحصالی نظام کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چاہے وہ عدم مساوات کا معاملہ ہو، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو، یا اور دوسرے مسائل، جیسے کہ ان کے بہت سے افسانوں میں اس کا بیان ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے کئی لوگوں نے گفتگو بھی کی کہ کیسے ہی ہمارے سماج کا جو جبر ہے یا جو سسٹم ہے جس میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، اس میں عورتوں کے حوالے سے ہم کس طرح کی کا نظریہ رکھتے ہیں یا کس طرح کا ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت سماج اور معاشرے میں وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، اپنی گفتگو کرتی ہے، یا وہ اپنے حقوق کی طالب ہوتی ہے، تو جو ایک سسٹم ہے سماج کا، جو جبر کا نظام ہم نے بنایا ہے، اس کے حوالے سے عصمت نے بہت ہی کاری ضرب لگائی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم فنکار تھی، اردو ادب میں ان کا مقام بہت بلند ہے جس سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ خدا حافظ۔ جی ہلو جی ہلو ہلو، بس آپ کا میری بات ہو گئی، شکریہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ بہت بہت، میری بات مکمل ہو گئی۔ جی اب آپ اگلے کسی شریک کو بلا لیجیے۔ جی جی میں ڈاکٹر اسما کاظمی صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں، وہ اب دکھائی دے رہی ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ عصمت چغتائی کی پورٹریٹ کی رونمائی بھی کریں، اور کس مقصد کے تحت انہوں نے عصمت چغتائی کی یہ پورٹریٹ خلق کی ہے، تو اس کی بھی جو ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر اسما کاظمی صاحبہ، میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ Can you hear me now? جی جی آ گئی۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے طارق صاحب اور علی جوہر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خاص طور پر آفتاب بھائی کا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا، اور میں عصمت چغتائی کی پرسنالٹی سے جو متاثر ہوئی ہوں وہ ان کی کچھ خصوصیات رہی ہیں جو آپ بخوبی ان سے وابستہ رہے ہیں سبھی۔ میں جتنی بھی ان کی تعریف کروں ناکافی رہے گی۔ تو میں نے ان کا سب سے پہلے جو پوائنٹ تھا کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا، اور دوسری بات کہ میں نے ان کے بارے میں جب پڑھا کہ اس دور میں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ایک بہت اچھی پتہ نہیں کون ہے وہ آفتاب سر اور جوہر سر بیٹھے بغل بغل میں، آواز اٹھائی، وہ بہت ہی ایک بہت ہی میجر ورک تھا، اور نو ڈاؤٹ شی واز میجر ٹیلنٹڈ لیڈی۔ بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ ان کو ہر دور میں یاد کیا جاتا رہا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا، اور میں نے ان کی اسی پرسنالٹی کو اپنے پورٹریٹ کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ ناؤ آئی ایم unveiling portrait of جی ضرور دکھائی دے رہا ہے میم، آپ رونمائی کریے اس کی۔ جی بہت ویری نائس، بالکل واقعی لگ رہا ہے کہ ہاں وہ بول دیں گے۔ شکریہ، اور میں یہ اپنی طرف سے اردو ڈپارٹمنٹ کو دے رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، ریسیو کریں گے، سر موجود ہیں یہاں پہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت شکریہ میم۔ اور میں اس میم کے بارے میں، اسما کاظمی صاحبہ کے بارے میں ضرور یہ بھی کہوں گا کہ ابھی انہوں نے جو ہے جرمنی کے چانسلر کی بھی ایک پورٹریٹ بنائی تھی، اور وہ جرمنی میں وہاں انہوں نے جا کر پیش کی تھی، اور اس کے لیے ان کو اعزاز سے نوازا بھی گیا تھا، تو قابل مبارکباد ہیں وہ۔ ہم ان کا ایک بار اور اس پروگرام میں
तो हम चाहेंगे कि उस पर्सनालिटी पर भी जो है मैम से गुजारिश है कि वो ज़रूर जो है एक तस्वीर इस तरह की पोर्ट्रेट वो ज़रूर बनाएं और उसमें जो है हमारे इस प्रोग्राम में इस तरह से शरीक हों तो बहुत अच्छा लगेगा। जी ज़रूर, मैं तैयार हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं अब आफ्ताब भाई 1 मिनट लूँगा यहाँ पे मैं। आफ्ताब भाई आपकी बात रोक रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट लूँगा। असल में जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोगों ने कुछ वेबिनार्स किए और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जैसे कि ये कोविड की वजह से इस तरह के वेबिनार हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह से पहला मौका है, मतलब खाली ये हिंदुस्तान ही नहीं, क्योंकि इसमें अलीगढ़ से, लखनऊ से, बनारस से और काफ़ी दुनिया के कई मुल्कों से लोग जुड़े हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि इस तरह से किसी, जब हम अदीब को या किसी को याद कर रहे हैं और उसका पोर्ट्रेट इस तरह से बन रहा है और उसको हम जूम पे जो है वो सामने रिवील कर रहे हैं, रोनुमा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ख़ास बात है और ये पहली बार हो रही है। और ये अब तक जो जूम का कह सकते हैं, जो मैं कह सकता हूँ कि जूम की जो तारीख है जब से ये शुरू हुआ है, ख़ास तौर से पिछले 4-6 महीने से, तो उसमें ये पहली बार है। और इंशाल्लाह आगे भी जो इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, वेबिनार्स होते रहेंगे, तो उसमें ये सिलसिला जो है वो कायम रहेगा। और ये सिलसिला मैं जस्ट 1 मिनट और लूँगा, एक चीज़ और ऐड कर दें, जो लोग बाद में काफ़ी लोग जुड़े हैं, कि ये एक सेंटिनरी सीरीज़ है AMU सेलिब्रेशंस की, सेंटिनरी की, और इसमें AMU ओल्ड बॉय एसोसिएशन लखनऊ और सर सैयद और भीमराव अम्बेडकर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और कई सारी इस तरह की और भी तंजीमें जुड़ी हैं, लखनऊ से, बनारस से, दिल्ली से और कई मुल्कों से लोग इसमें जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई आप कंटिन्यू करिए। जी जी बेहतर जी। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी और नए सदर शुबा उर्दू प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर साहब जो मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अब कुछ इजहार ख्याल करें, इसमत चुगताई के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। और ये हम लोगों के लिए बड़ी मुबारक घड़ी है और ये भी एक मुनफरिद प्रोग्राम इस तरह से भी हो गया है कि ये चेयरमैनशिप के बाद जौहर साहब का ये पहला प्रोग्राम है, तो हमने इस एतबार से भी उनको मदऊ किया और हमने कहा कि उनसे दरख्वास्त की थी कि आप ज़रूर जो है इस प्रोग्राम में शरीक हों और मेहमान खुसूसी की हैसियत से, और उन्होंने जो है हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपनी कलमात खैर करें और कुछ ख्यालात का इज़हार फरमाएं। इस महफिल के सदर प्रोफेसर तारिक चतारी साहब, आतिफ हनीफ साहब, नाज़िम जलसा डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, रेशमा साहबा, अस्मा काज़मी साहबा और प्रोफेसर सीमा सगीर साहबा, और मुझे हमारे दोस्त भी दिख रहे हैं, प्रोफेसर शाहबुद्दीन साकिब साहब भी जुड़ गए हैं। अचानक मुझे आफ्ताब साहब का हुक्म मिला कि इस वेबिनार में मैं शरीक हूँ। मैंने कहा मेरी मसरूफियत से आप वाकिफ़ हैं, मुझे आप क्यों इसमें परेशान कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपके लिए मसला हल यूँ कर दिया है कि आपके दरमियान फिक्शन राइटर मौजूद हैं, आपको कुछ कहना नहीं है, बस आप अपनी मौजूदगी का सबूत पेश करते रहिएगा, सारा काम तो हमारे जो सदर मोहतरम हैं वो ज़ाहिर है वो फिक्शन राइटर भी है, वो इसको संभालेंगे। बहरकैफ, लेकिन चूँकि मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके दरमियान तो कुछ न कुछ तो कहना ही है। किसी मगरबी राइटर ने कहा था कि मैन इज़ स्टाइलिस्ट, उसलूब शख्सियत या पर्सनालिटी के इजहार का नाम है। जब किसी भी आप फन पारे का जायजा लेते हैं तो कई सवाल उभर कर सामने आते हैं। क्या, कैसे, फनकार ने क्या कहना चाहा, किस तरह से कहा, क्यों कर कहा, ये तमाम सवालात हमारे सामने आते हैं। हम अदब के तालिब इल्म की हैसियत से हम सोचते रहते हैं, गौर व फिक्र करते हैं कि आया पहला सवाल दूसरे सवाल से कहीं ज़्यादा अहम तो नहीं है, और हम ये महसूस करते हैं कि किसी अदीब ने अदाए ख्याल या इजहार जज्बात के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया है वो इसमें कहाँ तक कामयाब है। जहाँ तक इसमें चौथाई का सवाल है, उनके बहसियत अफसाना निगार, बहसियत नावल निगार और बहसियत खाका निगार, भाई का खाका जो उन्होंने लिखा है दोज़खी, मैं समझता हूँ कि इसमत के अलावा कोई और नहीं लिख सकता,
कोई नहीं लिख सकता है। आप उसे, जाहिर है हमारे अदीबों ने सब, आप सबों ने पढ़ा है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने लिखा बेबाका ने उसका इजहार किया है। उसके नावेल, उसके अफसाने आप पढ़िए जिसका अभी हमारे मकाला निगारों ने इजहार किया है। सब हर लफ्ज व लफ्ज जो है बयानिया तहरीर आप पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा लगा कि जो कुछ वो महसूस करती थी, जो कुछ उन्होंने सोचा, जो कुछ उन्होंने देखा, हूबहू उसकी तस्वीर उभार दी। और उन्होंने गास्कर, जो यूनुस गास्कर का इसके साथ जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें साफ साफ इस बात का इजहार किया कि मैं जो कुछ महसूस कर रही थी, जो कुछ हमने देखा नजरों के सामने, उसको हमने अमली जामा पहना दिया। तो यही उसका कमाल है। जब वो अलीगढ़ आई, बीएड में दाखिले लिए और उसके बाद उन्होंने स्टेज करना शुरू किया तो लोगों ने, खातून ने उन्हें बर्नार्ड शाह से ताबीर कर दिया। अब वो जमाना देखिए और आज का जमाना देखिए। मगरबी तहजीब, मशरिकी तहजीब अब भी हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है जिसका उन्होंने इजहार किया है अपने अफसानों में। अब भी हम सोचने पर मजबूर होते हैं। यह हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और सोचने का मकाम है। बहरहाल इस चंद बातों के साथ मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे शरीक किया, बेहद आप लोगों का शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि मेरी बात को प्रोफेसर तारिक चतारी आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। बेहद आप तमाम हजरात का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर साहब। मैं अब सदर जलसा प्रोफेसर तारिक चतारी साहब से गुजारिश करूँगा कि सदारती खुतबा पेश फरमाएँ। और ये हम लोगों के लिए बेहद सआदत की बात है कि सर इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ, और उनसे बेहतर जाहिर सी बात है कि एक फ़नकार को एक फ़नकार ही समझ सकता है जिस बेहतर तरीके से। तो वो ज़रूर कुछ ऐसी बातें बताएंगे इसमेत चुगताई के हवाले से जो नाक़िद तो कम अज़ कम नहीं बता सकता है, एक तख्लीक़कार ही बता सकता है। तो मेरी बिल्कुल वो मेरी दरख्वास्त है प्रोफेसर तारिक चतारी साहब से कि इज़हार ख्याल। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। पहले तो मैं आतिफ साहब को और जो भी इसमें शरीक हैं इसको ऑर्गेनाइज करने में, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। वाकई इस ज़माने में जब कोविड-19 की वजह से हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, तो अदबी माहौल बनाने के लिए इस तरह के सेमिनार, जिसको वेबिनार कहा गया, वो ऑनलाइन सेमिनार, वो बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं। ये एक तरह से जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन आ गई हो और हम लोगों को एनर्जी मिल गई हो, उस तरह का काम कर रहे हैं। अब इसमें जो कुछ भी पढ़े गए मज़ामीन, असल में ज़रा सा आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आवाज़ की रही, तो पूरे तौर पर जैसा कि इन्हमाक के साथ सुना जा सकता था, वो बीच बीच में कभी कभी रुकावट आ रही थी। फिर भी सीमा सगीर साहिबा ने जो पूरा तारुफ कराते हुए उनके अफसाने और नावलों पर जो बात कही, वो यकीनन बहुत कारआमद थी। रेशमा परवीन ने कतरे खून के हवाले से बहुत अच्छी बातें की, वो पहले भी मैं उनको सुन चुका हूँ, उनके मज़ामीन भी पढ़ चुका हूँ, तो वो बहुत ढंग से, बहुत सलीके से अपनी बात कहती हैं। अब और ये तस्वीर का तो आतिफ साहब ने भी जिक्र किया कि वाकई ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह के ऑनलाइन सेमिनार्स में किसी तस्वीर की वो नुमाई हुई हो, तस्वीर नुमाई हुई हो। मैं बस इसमें चुगताई के बारे में कुछ ऐसी गैर रस्मी सी बातें कहना चाहूँगा, चूँकि बहुत अच्छे मज़ामीन तो पढ़े ही गए। मंटो इसमत का तकाबली मुताला भी हुआ, अख्तर साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की, और ये फातिमा अलीबा की आवाज़ ज़रा कम आ रही थी, लेकिन फिर भी उनकी बातें जो समझ में आई वो बहुत बेहतर थी। देखिए, इसमें चुगताई जो थी, ये सब जानते हैं कि वो बहुत बेबाक थी, और वो सिर्फ अपनी राइटिंग में नहीं, वो ज़िंदगी में भी बेबाक थी। तो उनके कुछ वाक़यात ऐसे हैं, ख़ास तौर से मंटो की और उनकी बड़ी गहरी दोस्ती भी थी और एक दूसरे की सलाह भी करते थे। मंटो ने कई दफ़ा उनको मशवरे भी दिए, ख़ास तौर से लिहाफ जब उन्होंने लिखा तो मंटो का मौजू था वो, तो मंटो ने उस पर मशवरा दिया, उन्होंने माना भी। लेकिन जो उनका इख्तिताम था, और मंटो के कहने से जो बदला, अगर आप कभी मौका मिले और दोनों को देखें, तो इसमत का इख्तिताम भी बहुत ज़बरदस्त था। हालांकि मंटो के मशवरे को उन्होंने तस्लीम कर लिया, लेकिन अगर उसकी शुरुआत यानी इब्तदा और इख्तिताम को दोनों को आप मिलाकर देखना चाहें,
تو عصمت چغتائی نے بہت اہم طریقے سے اس کا بہت خاص طریقے سے اختتام کیا تھا. ایک بات اور ہے کہ ان کا ایک مضمون ہے، وہ ہے پوم پوم ڈارلنگ. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کہ وہ افسانہ ہے، وہ افسانہ کی جو ظاہر ہے کوئی افسانہ نگار مضمون بھی لکھتا ہے تو وہ افسانے کی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ مضمون ہے قرۃ العین حیدر پر. اور اس میں قرۃ العین حیدر کو کچھ مشورے دیے ہیں انہوں نے، اور بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی کو سمجھنا چاہیے، کس طرح سے زندگی ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس میں جب ہم اب قرۃ العین حیدر کو پڑھتے ہیں تو وہ اعتراضات جو کیے تھے، جو مشورے دیے تھے عصمت چغتائی نے، وہ ان کی تحریروں میں نظر نہیں آتے. اس سے اندازہ یہ صاف صاف ہو جاتا ہے کہ قرۃ العین نے کہیں نہ کہیں اس مضمون کی روشنی میں اپنے ادب میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہے، چونکہ وہ صاف اعتراضات جو شروع کی کہانیوں میں تھے، جو رومانٹک کہانیاں لکھتی تھیں اور جس طرح سے وہ پیش کرتی تھی کرداروں کے اندرون کو، داخلی کیفیات کو، وہ اس میں تبدیلی آ گئی. تو تبدیلی آ گئی، اس میں چغتائی کے مشورے انہوں نے بغیر اعلان کیے تسلیم کیے ہیں. یہ اس کا صاف ثبوت ملتا ہے، چونکہ بعد کے افسانوں میں وہ اعتراضات بالکل بھی نہیں ان کا امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو ایک تو وہ بہت گہرائی سے نہ صرف یہ کہ اپنے افسانے لکھتی تھی، بلکہ گہرائی سے افسانے کو سمجھتی بھی تھیں، ناول کو بھی سمجھتی تھیں، اس پر تنقید بھی کر سکتی تھیں وہ. اور قرۃ العین نے بھی ان پر مضمون لکھا، وہ بھی بہت اچھا مضمون ہے. ان کے انتقال کے بعد لیڈی چنگیز خان انہوں نے مضمون لکھا. لیکن بہرحال دوسری بات یہ کہ انہوں نے کچھ، دیکھیے ابھی ایک بات آئی تھی جو شاید رحمہ نے کہی تھی کہ انہوں نے جو ایک قطرے خون لکھا تو ان کا موضوع نہیں تھا وہ، اور اس کے علاوہ لکھا. بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے وہ جو کہنا چاہتی تھیں اس کے حوالے سے، امام حسین کی شہادت کے حوالے سے اور واقع کربلا کے حوالے سے، وہ زمانے کے حالات پر ہی روشنی ڈال رہی تھی. یہ بہت اچھی بات تھی. تو ایک بات اس میں مجھے بھی ایک واقعہ یاد ہے کہ جب وہ علی گڑھ آئی تھیں تو آرٹس فیکلٹی لاؤنج میں ایک فنکشن ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے قطرے خون کے بارے میں کچھ بتایا اور تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھ کر بھی سنایا تھا. تو لوگوں نے جب یہ پوچھا، انہوں نے بھی، ریشما نے بھی اس کا ذکر کیا کہ صاحب آپ کا تو یہ موضوع نہیں ہے، آپ نے کیوں لکھا، کیا تحریک تھی جو آپ نے لکھا. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، ہو سکتا ہے وہ بالکل فکشن ہو، بناوٹی ہو، لیکن اس سے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سوچتی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے ایسا ہے کہ ایک دفعہ میں بچپن سے رشید احمد صدیقی کو پڑھتی تھی اور ان کی باتیں اور ان کی تحریر میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے بہت اچھا لگتا تھا، تو میں کبھی کبھی ان سے ملنے جایا کرتی تھی. تو ایک دفعہ میں ملنے گئی ان سے، تو جیسے ڈرامائی انداز میں وہ بات کرتی تھی بے باکی سے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے بلایا کہ عصمت تم ادھر آؤ. دیکھیے عصمت صحیح لفظ ہے لیکن ان کا نام عصمت ہی تھا، اس لیے آپ عصمت ہی اس کو تسلیم کیجئے، وہ وہی لکھتی تھی. تو وہ عصمت آپ اندر آؤ، تو وہ اندر لے گئے مجھے اور دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر مجھ سے کہا یہاں بیٹھو. تو اب ظاہر ہے ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ ہی تھے، سن رہے تھے ان کی باتیں، تو ان کا یہ بتاؤ کہ سامنے جو یہ تم ایسے افسانے کیوں لکھتی ہو، لحاف ہے یا بہت سارے ان کے افسانے ہیں، سانڈے کا تیل ہے اور جانے کتنے افسانے ہیں جو جنس پر بہت کھل کر انہوں نے لکھا ہے، کہ تم ایسے افسانے کیوں لکھتی ہو. تو انہوں نے کہا دیکھیے رشید صاحب، سامنے آپ کی دیوار بالکل صاف شفاف سفید رنگ کی ہے، اگر اس پر کوئی داغ لگ جائے کالے رنگ کا تو وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوگا. تو ہمارے سماج میں جہاں اچھائیاں ہیں وہاں اگر برائی ہے کوئی تو اس کو ہمیں اجاگر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو ہماری نظر پہلی نظر اسی پر پڑے گی تخلیق کار کے حیثیت سے جہاں داغ ہوگا، جو سیاہ ہوگا، کالا. تو رشید صاحب نے بہت مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عصمت تمہیں داغ تو نظر آ گیا، بہت اچھا ہے، لیکن تمہیں پوری دیوار کبھی نظر نہیں آئی جو سفید ہے. تو مجھے ان کو لگا کہ مجھے یہ تحریک ملی وہاں سے کہ نہیں، مجھے کوئی ناول ایسا بھی لکھنا چاہیے کہ جس میں کچھ دوسرے مسائل ہوں اور یہ سیاہ دبے کو اجاگر نہ کیا جائے. تو میں نے یہ لکھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیان، یہ جو تحریک ملی تھی یہ صحیح ہو، لیکن انہوں نے یہ فرمایا. پھر ایک دفعہ وہی ناول جب تک مکمل ہو گیا تھا تو انہوں نے ایم ہال کا جو کامن روم تھا، پہلے کا ماحول علی گڑھ کا یہ تھا کہ جب بڑے ادیب آیا کرتے تھے تو ان کو کامن روم میں ہر ہال کے لڑکے بلاتے تھے، ان سے سنتے تھے. میں نے خود روس مسعود ہال میں رات بھر ایک اکیلے سردار جعفری کو بیٹھ کے چوکی لگا کے اس میں صحن میں لان میں ان کو رات بھر سنا ہے. اختر الایمان آئے تھے 10 ہال کے کامن روم نے، انہوں نے
कई नज़में सुनाई और ख़ास तौर से जब एक लड़का सुनाई तो सभी लोग उस पर झूमे। तो अदीब आते थे, कुरतुल हैदर भी आती थी, सुनाती थी, और इसमें चुगताई भी अक्सर आती थी, और जीसी में भी बहुत बार आई हैं। तो बहरहाल वो वाक़या जो था कि जब वो वहाँ उन्होंने सुनाया तो पैगाम आफाकी थे, वहाँ फ़रत एहसास थे, और हम लोग थे, सब लोग थे, सुन रहे थे। तो उन पर ये एतराज़ात किए कि ये बताइए इसमत आपा कि आपने इसमें हज़रत अली का कद तो बहुत लंबा अच्छा दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं था, इसमें फ़लाँ चीज़ आपने ये दिखाई, फ़लाँ चीज़ ये दिखाई। उन पर काफ़ी एतराज़ात किए। अब स्टूडेंट थे अलीगढ़ में, तो सभी पे एतराज़ात होते थे, अगर कोई उनको ऐसी बात खटकती थी तो सवाल पूछा जाता था। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये एतराफ़ किया, जो रिश्वा ने भी कहा, कि भाई देखिए मैंने ये तारीख नहीं लिखी है, और मैंने ये इसको मतलब तारीखी नुक्ते नज़र से तहकीक करके नहीं लिखा, बल्कि मैंने तो जो अनीस ने, जिस तरह से मीर अनीस ने डिपिक्ट किया है लोगों को, जिस तरह से उनकी बनाई, और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आया। अब पोस्ट मॉडर्निज्म में जो सबसे पहली बात सामने आई वो ये थी कि बैनुल मुतूनियत, यानी एक टेक्स्ट पर दूसरा टेक्स्ट बनाने का रवैया और वो अमल। तो अगर आप इस तरह गौर करेंगे तो इस्मत चुगताई ने पहली बार किसी टेक्स्ट पर एक टेक्स्ट की तश्कील की थी, यानी मीर अनीस के टेक्स्ट पर उन्होंने अपने नावल की बुनियाद रखी और उसको मुकम्मल किया। तो वो बहुत आगे तक जाती हैं यहाँ। दूसरी बात यह कि बहुत आगे के सामने की बातें कह के लोग आमतौर से रुक जाते हैं कि उनके यहाँ बेबाकी है, उनके यहाँ उनकी ज़बान बेगमाती ज़बान है, और वो इस तरह से लिखती हैं कि जैसे बिल्कुल बोलचाल की ज़बान वहाँ की बेगमों की, औरतों की हमारे सामने आती है। लेकिन उनके जब अफसाने पढ़िए तो वो कोई भी अफसाना हो, उसमें आपको महसूस होगा कि बेदी की ही तरह किरदारों के अंदर वो दाखिल होती चली जाती। ऐसा नहीं है कि वो खारजी अमल को और सादा बयानियां लिखती हों। अगर हम बहुत तहकीक की नज़र से पढ़ेंगे, यानी वो तहकीक जिसमें तनकीदी कुव्वत शामिल हो, तो हमें मालूम होगा कि चुगताई ने काफ़ी हद तक किरदारों को के बातिन को खंगाला है, बहुत अंदर गहराई में जाकर उनको देखा है। आप देखिए जो उनके दो हाथ है, उसमें देखिए किस तरह के डायलॉग हो रहे हैं, बेगमात का रवैया किस तरह का हो जाता है, जो यहाँ से तो काफी हद तक वो ऐसा काम करती हैं जो बहुत ही गहराई में जाकर पेश करती हूँ। और अब जैसे मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ, वो तस्वीर चली गई थी आपकी। तो उसमें मैं सिर्फ अब यहाँ अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि ज्यादा बोलने का मौका भी नहीं है और इसमें वक्त भी ज्यादा हो गया है, कि इसमें चुगताई का, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी जिक्र आया था चौथी का जोड़ा, उनके मशहूर अफसानों में है, उसका मैं सिर्फ दो चार जुमले उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि फनकारी अगर देखनी है, जैसे लोग कहते हैं बयानिया उनका है, बयानिया अफसाने थे या सादा बयानिया है, ऐसा नहीं है। आप शुरू से आप देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी चीजों का भी जिक्र है। जैसे उन्होंने कहा सफेद गजी, कपड़े का जब जिक्र करती हैं, और लाल टूल, टूल असल में टोइल जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसको उर्दू में हम लोग टूल कहने लगे हैं, वो TWILL टोइल है। तो वो एक कपड़ा होता था, रेशमी कीमती कपड़ा होता था, तो इसका जिक्र हुआ। वहीं पे आप देखिए शादी का जिक्र हो रहा है, क्योंकि वो एक पड़ोस से चौथी का जोड़ा सिलवाने के लिए एक लोग आए हैं, पड़ोस की किसी लड़की की शादी होने वाली है, और मौत का जिक्र हो रहा है, चूंकि उनकी बेटी जो थी उसका इंतकाल हो जाता है बगैर शादी हुए ही। उधर आप देखिए खुशी का जिक्र है तो गम का जिक्र है, कफन का जिक्र है तो चौथी के जोड़े का जिक्र है। ये उन्होंने इस तरह से पूरे अफसाने की बुनत की है जैसे जरदोजी का काम होता है, एक तार सुनहरी है तो एक तार सफेद है। इस तरह से उन्होंने पूरे अफसाने को बुना है शुरू से आखिर तक। और आमतौर से जब इख्तिताम का ख्याल आता है कि इसका सब खुश हो गई सब लोग कि ये इस पड़ोस की लड़की की शादी का जोड़ा तैयार हो रहा है, और कपड़ा जो कम था वो सही हो गया, बेगम साहिबा ने उसको सही कर लिया, चूंकि सीरे पिरोने में ये बहुत माहिर थी।
اب ظاہر ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو ان کی کیفیت آخری جملے میں یہ دکھائی گئی ہے کہ ان کے آنکھ سے ایک آنسو گرا اور روئی جیسے گالوں میں جذب ہو گیا. تو یہاں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سب خوش ہیں, ان کی آنکھ سے آنسو کیوں گرا؟ تو ہماری سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے بغیر ایفرٹ کیے ہوئے کہ ان کو اپنی بیٹی یاد آئی کہ اس کا نہیں سل سکا, اس کا تیار نہیں ہو سکا اور آخر کار تیار کرنا پڑا, تو رو رہی ہیں. لیکن اسی جملے میں, یعنی پورا جملہ بھی نہیں ہوا اور دوسرا جملہ لکھتی ہیں, یعنی آنکھوں سے آنسو گرے اور روئی جیسے گالوں پہ جذب ہو گئے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. یہ جو لکھتی ہیں تب قاری کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا ہوا, اور وہ سوچتا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک ناقدین نے شاید ادھر اشارہ بھی نہیں کیا ہے کہ وہ مسکراہٹ کیا ہے. وہاں بھی دیکھیے, اگر ایک طرف ٹویل ہے تو ایک طرف سفید گزی ہے, ایک طرف اگر چوتھی کا جوڑا ہے تو دوسری طرف کفن ہے, ایک طرف شادی ہے تو ایک طرف موت ہے, یہاں ایک طرف آنسو ہے تو دوسری طرف مسکراہٹ ہے. اب وہ مسکراہٹ ہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پورا افسانہ لکھا. اور وہ مسکراہٹ کیا ہے؟ دراصل مسکراہٹ یہ ہے کہ اس کی جو پڑوسن تھی جس کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اس کی شادی کا جوڑا تیار ہو گیا ہے اور وہ اب شادی ہو جائے گی اور یہ خوشی کا مقام ہے. تو مسکراہٹ جو ہے وہ اس کے لیے ہے, اور اس میں بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ کسی کی خوشی میں شامل ہو کر, غم میں تو ہوتے ہی ہیں لوگ شامل, کسی کی خوشی میں شامل ہو کر اپنے غم کو بھلایا جا سکتا ہے. اور اپنے غم کو بھلانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کی خوشی میں شامل ہو جائیے اور اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیجئے, تو آپ کو یہ دائمی سکون مل جائے گا. تو جس کی باریکیاں ہو, ایسی ہو, ان کو آپ سادہ بیانیہ کہہ کر نہیں ختم کر سکتے ان پر بات. اور یقیناً وہ بہت باریکی سے کہانی بھی بنتی تھی اور کرداروں کے اندر جاتی تھی. نفسیات پر بڑی گہری پکڑ تھی ان کی, حالانکہ بیدی نفسیات کے لیے ماہر ہیں, مشہور ہیں, لیکن ان پہ ان کی بھی بڑی گرفت تھی. تو یہ غلط نہیں کہا جا سکتا کہ ترقی پسند تحریک کے 4 پلر ہیں, جس میں کرشن چندر, راجندر سنگھ بیدی, عصمت چغتائی اور منٹو, یہ چاروں لوگ ہیں. ان چاروں کا الگ الگ اسلوب ہے اور چاروں کا وہ ہے, لیکن معیار میں ایک دوسرے سے کم زیادہ بتانا مشکل ہے. انداز سب کا الگ الگ ہے. میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں اور آپ کو ایک بار پھر مبارک دیتا ہوں کہ بہت اچھا سیمینار آپ نے آرگنائز کیا. شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ پروفیسر طارق چھتاری صاحب. اس پرمغز اور بےحد اہم گفتگو کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, ممنون ہوں. اور اب میں ہدیہ تشکر کے لیے ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. سلام. آواز میری پہنچ رہی؟ جی بولیے ریحان بھائی. آفتاب صاحب آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, آپ بولیں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے تمام شرکاء کا جو ہماری اس مجلس تقریب کا جو عنوان تھا عصمت چغتائی فکر و فن, ان کی شخصیت پر جو آج پروگرام آرگنائز کیا گیا, تو ان کے تمام شرکاء کا میں شکر گزار ہوں. اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں پروفیسر سیما صغیر صاحبہ, ڈاکٹر محمد اطہر صاحب, ڈاکٹر ریشمہ پروین صاحبہ, ڈاکٹر فاطمہ علیبہ اور ڈاکٹر عشرت جہاں اور ڈاکٹر اسما کاظمی صاحبہ کا, کہ ان تمام لوگوں کی شرکت سے ہمارا یہ پروگرام انتہائی پرمغز بھی رہا اور دلچسپ بھی رہا. اور جو خاص طور پر شکر گزار میں پروفیسر محمد علی جوہر صاحب, چیئرمین شعبہ اردو کا, اور پروفیسر طارق چھتاری صاحب صدر مجلس کا, کہ ان لوگوں کی شرکت سے آج کا ہمارا یہ پروگرام یقیناً پرمغز بھی رہا اور خوبصورت بھی رہا. جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ان دونوں حضرات کی سرپرستی میں انشاءاللہ رحمان یہ علمی کارواں چلتا رہے گا, اور آگے بھی اس طرح کے جو بھی پروگرام آرگنائز کیے جائیں گے
क्योंकि इस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 7 साला तकरीबात का चल रहा है उसी की एक अहम कड़ी है। और आगे भी इस तरह के मौजूआत पर जब भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो इन तमाम जो जिम्मेदार हजरात हैं उनकी सरपरस्ती हासिल रहेगी। और मैं खासकर शुक्रगुजार हूँ अमोबा लखनऊ का, जिसमें तारिक सिद्दीकी साहब सदर अमोबा, जावेद सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी अमोबा लखनऊ और आतिफ हानिफ साहब डाली गई है। और आखिर में एक बात मैं कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि कल ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रहमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आएगा और न्यूज 18 ETV उर्दू के चैनल पर ये नश्र किया जाएगा। तो जो जिन हजरात की 30 सेकंड की बाइट या वीडियो रह गई है, जिसमें डॉक्टर अस्मा काजमी साहिबा और इशरत जहां साहिबा, रेशमा साहिबा, प्रोफेसर सीमा सगीर साहिबा, वीडियो रह गई है, वो आफ्ताब साहब को सेंड कर दी जाए ताकि कल ETV उर्दू, औज़ी सलाम और न्यूज 18 पर ये शाये हो। एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम शुरका का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जिन हजरात की प्रोग्राम में के दौरान वो वीडियो अपनी नहीं बना सके हैं 30 सेकंड की, तो वो इसी वक्त बैठ के सिस्टम पे जैसे मौजूद हैं वो 30 मुंतज़मीन, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो कल के प्रोग्राम का टॉपिक और लिंक अगर मिल जाता है तो मैं केरल से अताउल्ला खान संजरी श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ सदर शोभा शोबे उर्दू का। जी जी। तारिक साहब, तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई बहुत जौहर साहब का शुक्रिया अदा करना है। जौहर साहब तशरीफ ले आए, ये बहुत अच्छा रहा। जी अरे कल के प्रोग्राम की अगर लिंक और इसका ये टॉपिक अगर मिल जाता तो थोड़ा आसानी होती, हमारे बच्चों को भी बता सकते थे तो शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम अभी जो होने वाला है हम उसमें जो है सर पहले तबील क्या होगी सर, किस तरीके से मिल पाएगा हमें ये प्रोग्राम? अगर हम आतिफ भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर यूट्यूब पे मिल जाएगा तैयार होकर तो हम आपको उसका लिंक भेज देते हैं। जी जी, वो आफ्ताब साहब, जी जी, इस प्रोग्राम की यूट्यूब इंशाल्लाह रात तक आ जाएगा और तमाम शुरका को सेंड कर दिया जाएगा। और ये तमाम टेक्निकल चीजें और जिम्मेदारी बखूबी बहुत अच्छे से जनाब आतिफ हनीफ साहब अदा करते हैं और इंशाल्लाह रहमान आगे भी अदा करते रहेंगे। और हम लोगों को रात तक ये लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह मैं आप भेजता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी आतिफ भाई, तारिक भाई, अमोबा की पूरी टीम, और आगे भी ये सिलसिला इंशाअल्लाह रहमान चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हो गया। हमने सोचा